السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم صرف کورس میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم ہفتہ اقسام کا بیان پڑھ رہے تھے، تو مثال دیکھ لیے، اجوف دیکھ لیے، ناقص، پھر مضاعف ہم نے دیکھ لیا۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں محموز کا بیان۔ ٹھیک ہے، محموز اس کلمے کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، جس کے حروف اصلی میں کیا ہو؟ حمزہ ہو۔ تو محموز ایسے کلمے کو کہتے ہیں کہ اس کے حروف اصلی میں کوئی حرف حمزہ ہو۔ اگر فا کلمے کی جگہ ہو تو محموز الفا، عین کلمے کی جگہ ہو تو محموز العین، اور لام کلمے کی جگہ ہو تو محموز اللام۔ تو یہاں پر بھی جیسے میں نے مضاف میں اور اس سے پہلے ہی بتایا کہ اس کے حروف اصلی کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ اکرما، اکرما میں یہاں پر حمزہ ہے لیکن یہ محموز نہیں ہوگا۔ یہ محموز کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اکرما میں یہ حمزہ جو ہے نا، یہ حروف اصلی نہیں ہے۔ حروف اصلی اس کے کیا ہیں؟ کاف، را اور میم۔ تو حروف اصلی کی بات ہوگی، جو اضافی ہوگے، مزید بھی ہوگے، ان کی بات نہیں ہوگی۔ تو جیسے محموز الفا کی مثال ہے امرا سے امرن، محموز العین کی مثال ہے سعالا راسن، اور اسی طرح محموز اللام کی مثال ہے ترا جزءن۔ تو فا کلمے میں ہو تو محموز الفا، عین کلمے میں ہو تو محموز العین، اور لام کلمے میں ہو تو محموز اللام۔ تو یہ بات تو آپ ہفتہ اقسام کا جب ہم نے سبق پڑھا تھا، پہلا سبق، اس وقت آپ کو یہ باتیں معلوم تھی۔ آج ہم چلتے ہیں محموز کے قواعد کی طرف۔ محموز کے قاعدے: کلمے میں کبھی ایک حمزہ ہوتا ہے اور کبھی دو۔ اگر ایک حمزہ ہو تو اس میں تخفیف جائز ہے۔ اگر ایک حمزہ ہو تو اس میں کیا ہے؟ تخفیف جائز ہے۔ اگر دو حمزہ ہوں تو تخفیف واجب ہے۔ دیکھو دونوں میں فرق ہوتا ہے نا، جائز اور واجب، ہر ایک کے قاعدے علیحدہ بیان کیے جاتے ہیں۔ کلمے میں ایک حمزہ ہو تو تخفیف کرنا یہ جائز ہے، کلمے میں دو حمزے ہوں تو تخفیف کرنا واجب ہے۔ اب یہ تخفیف کسے کہتے ہیں، اور جائز کی کیا صورتیں ہیں، اور واجب کی کیا صورتیں ہیں، یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ بیان ہو رہی ہیں۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں سبق میں، پورا آپ ایکٹیو رہیں۔ حمزہ منفردہ کی تخفیف، یعنی کلمے میں ایک حمزہ ہو۔ کلمے میں کتنے حمزہ ہو؟ ایک حمزہ ہو تو اس کی تخفیف کرنے کے کیا قاعدے ہیں، اور تخفیف جائز ہے تو کیا مطلب ہے؟ تو پہلا قاعدہ مصنف ذکر کر رہے ہیں علیہ رحمہ: اگر کلمے میں ایک حمزہ ساکن ہو اور اس کا ما قبل متحرک ہو۔ کلمے میں ایک حمزہ کیا ہو؟ ساکن ہو، اور اس کا ما قبل کیا ہو؟ متحرک ہو، تو اس حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اس حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ فتح زبر کو چاہتا، الف کو چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ اور بولیے، یا زیر یا کو چاہتا ہے، اور پیش کس کو چاہتا ہے؟ واؤ کو چاہتا ہے جی۔ تو یعنی فتحہ کے بعد الف سے، ضمہ کے بعد واؤ سے، اور کسرہ کے بعد یا سے۔ حرف علت یا حرف مدہ، آپ جو بھی ہو، جو آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یا گرامر میں آ جائیں گے تو حرف علت ہو جائیں گے، نورانی قاعدہ میں چلے جائیں گے تو حرف مدہ ہو جائیں گے۔ جیسے راسن، راسن، بوسن، زیبن کی اصل میں تھا راسن، بؤسن اور زیبن۔ اب دیکھو یہ صورت جو ہے، ہم زیبن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پڑھے تو وہاں پر حمزہ کے ساتھ ہی تھا۔ بؤسن بھی جو ہے بہت ریئرلی استعمال ہوتا ہے، کہیں آپ نے پڑھا ہو تو پڑھا ہوگا۔ اور راسن ہم بہت سی مرتبہ دیکھیں جو حمزہ کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہاں قاعدہ یہی ہے کہ حمزہ کو حرف علت کی سے بدلنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ تو کہیں پر آپ نے راسن دیکھا تو وہ بھی درست ہے، اور راسن دیکھا وہ بھی درست ہے، بؤسن دیکھا یہ بھی درست ہے، بوسن دیکھا یہ بھی درست ہے۔ اور اکثر جگہ زیبن دیکھتے ہیں، کہیں زیبن دیکھا تو یہاں غلطی ہے نہیں سمجھیں گے، بلکہ دونوں بھی پڑھنا درست ہے، کیونکہ حمزہ منفرد کی تخفیف جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ چلیں، تو پہلا قاعدہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف۔ چلیے، تو پورے قاعدے ایک ساتھ آ گئے تو دوسرے پر ہی نظر رکھیں۔ اگر حمزہ مفتوح ہو، اگر حمزہ کیا ہو؟ مفتوح ہو، اور اس کا ما قبل مضموم ہو۔
पीछे के कायदे में क्या था, हमजा क्या था, साकिन था। ये कायदे में क्या है, हमजा मफ्तूह है और माकबल मजमूम है। तो हमजा को वाव से बदलेंगे। जैसे जुअनुन के असल में जुअनुन था, ये क्या था, जुअनुन था। अब देखो हमजा क्या है, मफ्तूह है और माकबल पेश है। अब पेश किसको चाहता है, वाव को चाहता है। तो आप या तो हमजा को पेश से बदल दोगे, तो ये बदलना भी क्या होगा, यहां पर भी हम क्या करेंगे, तखफीफ करेंगे, और इसमें तखफीफ करना क्या है, जायज है। कायदा नंबर 3, अगर हमजा मफ्तू और माकबल मकसूर हो, देखो ये पेश के कायदा होगा, अब यहाँ या का आ गया, तो हमजा को या से बदल देंगे। जैसे मियरुन की असल में क्या था, मियरुन था, मियरुन था। तो हमजा मफ्तू है और उससे पहले जेर है, तो ये क्या हो जाएगा, मियरुन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मियरुन हो जाएगा। कायदा नंबर 4, अगर हमजा मुतहरिक हो और उसका माकबल वाउ साकिन हो या साकिन हो, और ये दोनों जायद हों, इल्हाक के लिए ना हो, तो हमजा को माकबल की जिन से बदलना जायज है। इसके बाद इदगाम करना वाजिब है। ये कायदा थोड़ा अच्छे से समझो। जैसे मकरुबतुन, खतीयतुन, उफय्यिसुन के असल में मकरूअतुन, खतीअतुन, उफय्यिसुन। कायदा क्या है, अगर हमजा मुतहरिक हो, ठीक है, तो एक मिसाल मैं यहां ले लूंगा, मकरूअतुन, ठीक है। अब देखो पहली चीज, कायदा मुतहरिक है, हमजा मुतहरिक है, ठीक है, मुतहरिक है, पहली बात पाई गई। दूसरी चीज क्या है, उसका माकबल वाउ साकिन हो या साकिन हो, माकबल वाउ साकिन है, दूसरी बात भी पाई गई, ठीक है। और ये दोनों जायद हों, देखो मकरूअतुन मफऊलुन के वजन पर है ना, ये किसके वजन पर है, मफऊलुन के वजन पर है। तो मफऊलुन के वजन पर तो ये वाउ जायद है, हुर्फ असली में से नहीं है, तो ये वाउ जायद है, तीसरी बात भी पाई गई। इल्हाक के लिए ना हो, इल्हाक करने का जो हमने कायदे पढ़े थे उसके लिए ना हो, नहीं है भाई। तो हमजा को माकबल की जिनसे बदलना जायज है। देखो यहाँ जायज की बात चल रही है, वाजिब की नहीं चल रही है। तो ये मकरू अतुन को हम क्या कर देंगे, मकरू वतुन कर देंगे, पहली चीज। अब हमजा को वाउ से बदल दिया, पहला साकिन है और दूसरा मुतहरिक है, तो वाउ का वाउ में इदगाम हो जाएगा। तो वहां आकर ये क्या हो जाएगा, मकरूवतुन। ये क्या हो जाएगा, मकरूवतुन। ये क्या हो जाएगा, मकरूवतुन। अब आप ये लफ्ज को देखोगे मकरूवतुन, और आपके जहन में ये कायदा नहीं होगा, तो आप इसको ढूंढोगे कौफ रॉ वाउ में। हालांकि इसका हुर्फ असली क्या है, कौफ रॉ हमजा। आपको कौफ रॉ हमजा में ढूंढना है, और आप कहां ढूंढोगे, कौफ रॉ वाउ में। अगर आपके इल्म में ये कायदा होता तो यहां पर आपको शक होता, वाउ में न मिलने पर आप हमजा में जाते। अब उस्ताद अगर आपको बोलेंगे कि बेटा इसका हुर्फ असली क्या है, इसका मतलब क्या है, देख कर आओ, तो आप कौफ रॉ वाउ में ढूंढोगे, उसके बाद बोलोगे पूरा ढूंढ लिया, नहीं मिला, पूरा मैं ढूंढ ली मौलाना, नहीं मिला। हालांकि आपकी गलती क्या हुई कि आपने यहां पर वाउ में तो ढूंढा, फिर थोड़ा अपना दिमाग नहीं लगाया कि हमजा तो हो सकता है ना इस कायदे के तहत। तो कायदा मालूम होगा तो ये चीज होगी कि आपको बाज हरूफ की जहां पर तब्दीली हुई है उसके असल समझने में मदद मिलती। इसी तरह जो है खतियतुन था, हमजा मुतहरिक था, उससे पहले या साकिन था, तो हमजा को क्या करे, ये भी खतियतुन का जो है फाइलतुन के वजन पर है, ये या जायद है, तो ये या को क्या कर दिए, हमजा को क्या कर दिए, या से बदल दिए, फिर या का या में इदगाम कर दिए, खतियतुन हो गया। इसी तरह उफई इसम का भी मामला है, आप देख लें। अब एक सवाल होगा कि मौलाना सूउन में वाउ जायद नहीं, इसलिए हमजा को वाउ से नहीं बदला। अब ये जो सूउन होता है, तो इसमें तो है 3 हर्फ ना, तो ये वाउ इसका जायद नहीं है, इसलिए ये वाउ इस हमजा को वाउ से नहीं बदले, इस हमजा को वाउ से नहीं बदलेंगे। क्यों, हमारे कायदे में शर्त ये है कि दोनों जायद हों, वाउ या क्या हो, जायद हों। वाउ या क्या है, जायद हो। तो सून में वाउ जायद नहीं है, इसलिए हमजा को वाउ से नहीं बदले। उसके बाद कह रहे हैं जी आलुन और हव अबुन, चश्मा, ये दोनों जाफरा के साथ मुल्हक हैं, या और वाउ इनमें इल्हाक के लिए हैं, इसलिए हमजा को या और वाउ से नहीं बदला। जी आलुन वो बिज्जू कहते ना, बिज्जू, ठीक है, उसके लिए है। और हव अबुन जो है चश्मे के लिए है।
तो ये दोनों भी जो है जाफरा के साथ मुल्हक किए गए। जाफरा दाहरजा के वजन पर, दाहरजा के वजन पर, तो मुल्हक बा रुबाई। तो इसमें जो या है ये इल्हाक का है, ये या जो है इल्हाक का है, यहाँ पर वाउ जो है ये इल्हाक का है। इसलिए इनको जो है आप इनके बाद के हमजा को या से या वाउ से नहीं बदले, क्योंकि यहाँ पर या और वाउ इल्हाक के लिए है। कुछ बात समझ में आई? चलिए कायदा नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगर हमजा मुतहरिक हो और उसका माकबल साकिन हो, और वो साकिन ना तो मद्दा जायदा हो और ना नूने इंफियाल हो और ना याए तस्गीर हो, तो हमजा की हरकत ना नकल करके माकबल को देकर हमजा को हजफ करना जायज है। देखो भाई आ रहे हैं पेचीदा कायदे। जैसे जवुन, कद अफलहा के असल में यसअलु शैउन, ज़ौउन, कद अफलाहा था। अगर हमजा का माकबल साकिन हुर्फ मद्दा ना हो या याए तस्गीर ना, दोनों सूरतों में कायदा नंबर 4 जारी रहेगा। चलिए यहां तक की बात तो पहले समझ ले। एक मिसाल हम ले लेते हैं, हम मिसाल ले लेते हैं कायदे को समझने के लिए यस अलू की। ठीक है, अब आ जाओ। अगर हमजा मुतहरिक हो तो पहला पॉइंट पाया गया, ठीक है, और उसका माकबल साकिन हो तो दूसरा पॉइंट भी पाया गया। और वो साकिन ना तो मद्दा हो, ये सीन है साकिन हुर्फे मद्दा नहीं है, तीसरा पॉइंट भी पाया गया। ना तो मद्दा जायदा हो नहीं है, और ना नूने इंफियाल, नूने इंफियाल भी नहीं है क्योंकि ये तो मुजर्रद का फायदा है। और ना यार तस्गीर हो, यार तस्गीर की आती ना फ़ुआइलुन, रुजैलुन के वजन पर, पांचवा पॉइंट भी नहीं पाया गया। तो उस हमजा की हरकत ना नकल करके माकबल को देंगे। तो ये पांचों पॉइंट पाए गए, तो हम क्या करें कि इस हमजा की हरकत को नकल करके माकबल को दे दिए। ये हमजा की हरकत क्या हो गई, सीन पर आ गई। और क्या करें, हमजा को हजफ कर देना जायज है, हमजा को हजफ कर देना जायज है। ये क्या है मेरे भाई, भाई तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो बहनों ये क्या है, जायद को हजफ करना जायज है, हमजा को हजफ करना क्या है, जायज है, वाजिब नहीं। ठीक है ना, इसलिए ना यस अलूना कुरान करीम में भी आता है ना, यस अलूना। ठीक है, उसी तरह कद अफलाह, इसी पैटर्न पर कुरान करीम में कद अफलाहल मुमिनून। तो ये हमजा को हजफ करना जायज है, वाजिब नहीं है। और जौन तो हम इसी तरीके से पहचान दें, कभी हमने हो सकता है कि जौन नहीं देखा हो, शैउन भी हम ऐसे ही देखते हैं, शैउन नहीं देखते हैं कहीं पर। तो ये तमाम चीजें क्या है, जायज सूरतें हैं। आप अरबी अदब की किताबें पढ़ोगे तो वहां पर जो है कोई अदब में डूब कर किताब लिख रहे हैं, तो ये कायदे वो जारी कर दे, तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि यहाँ पर ये कायदा जारी हुआ है। तो इसलिए ये बात है। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे चलिए। अगर हमजा का माकबल साकिन हो, मद्दा जायद ना हो, याए तस्गीर, याए तस्गीर हो, तो इन दोनों सूरतों में कायदा नंबर 4 जारी रहेगा, यानी हमजा को माकबल की जिन्स से करके इदगाम कर देंगे। ठीक है, चलो उसकी मिसाल ये आ गया, मखरूअतुन और उफईसुन, वही मिसाल आ गई। जैसे मकरूअतुन और उफईसुन के असल में मकरूअतुन और उफईसुन थे, और अगर हमजा का माकबल साकिन हो, नूने इंफियाल है, तो उस हमजा को, चलिए तो देखो कायदे नंबर 5 की यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर हमजा का माकबल साकिन हो, तो मैं वही मकरूअतुन पिछले कायदे की मिसाल ही ले लेंगे, मकरूअतुन है, ठीक है, हमजा का माकबल साकिन है, पहला पॉइंट पाया गया। ठीक है, मद्दा जायद ना हो, मद्दा जायद नहीं है, ठीक है, याय तस्गीर हो, याय तस्गीर कहां पर है, यहाँ पर उफई इसुन में आ जाएगी याय तस्गीर, दूसरे वाले में आ जाएगी, इसको छोड़ दें। उफई इसुन में हम कह सकते हैं कि याय तस्गीर है। ठीक है, हमजा यहाँ ऊपर आना था, नीचे लिख दिया मैं, ठीक है, चलिए ऊपर ही लिख देंगे। तो हमजा मुतहरिक है, उसका माकबल साकिन है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, याय तस्गीर है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम कायदा नंबर 4 जारी करेंगे, यानी हमजा को या से बदल देंगे, फिर या का या में इदगाम कर देंगे, तो वो हो जाएगा उफय्यिसुन। ठीक है, तो वही कायदा नंबर 4 की जो बात थी, यहां पर वो बात आ गई। अब उसके बाद है, अगर हमजा का माकबल साकिन
नून इंफियाल है। जो ना होना पहले ऊपर बताए ना, अगर वो हो गए तो क्या होगा? नून इंफियाल है तो हमजा की हरकत माकबल यानी नून इंफियाल को ना देंगे, क्योंकि नून इंफियाल वजह के एतबार से साकिन है, उसको हरकत देने में कल्ब मौजू लाजिम आएगा। तो अगर हमजा से पहले नून इंफियाल आया तो नून इंफियाल की हरकत नहीं देंगे, नून इंफियाल को हमजा की हरकत पास ऑन नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहेगा। क्यों? वरना मौजू लाजिम आएगा। कल्ब मौजू लाजिम आएगा बोले तो देखो, इंफाला जो है ना बाबे इंफियाल से, तो इंफाला में बनावट के एतबार से ये नून साकिन रहना है। अगर हम हमजा यहां पर, अगर हमजा था, हमजा की हरकत नकल करके माकबल को दे देंगे यानी नून इंफियाल को दे देंगे, तो ये नून इंफियाल की जो बनावट है, जो मौजू है, जो असल मौजू है, वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज करना कायदे के एतबार से मुनासिब नहीं है, इसलिए उसकी हरकत नकल करके पीछे वाले को नहीं देंगे। फायदा, रुयत मजदर से जितने अफाल मुश्तक हैं उनमें यह कायदा वजूबन जारी होगा। रुयत मजदर से, रुयत, रआ यरा रुयतन है ना, रुयतन मजदर से जितने भी अफाल मुश्तक होते हैं उसमें यह कायदा वजूबन जारी होगा। ठीक है ना, ये पांचवा कायदा क्या होगा? वो वाजिबन जारी होगा। अब रुयत में जो है आपको आ जाएगा रआ, रायुन, ठीक है, यानी हमजा आ गया और नाकिस हो गया। तो ये हम जो है आगे मुरक्कबात का बयान देखेंगे तो वहां पर ये बात आपको तफसील से इंशाल्लाह आएगी। महमूस के बाद एक मुरक्कबात का बाब है, वो वहां पर हम उसको तफसील से देखेंगे। बस यहाँ ये याद रखना कि रुयत मजदर से जितने अफआल मुश्तक हैं उनमें ये कायदा वजूबन जारी होगा। चलिए, चलिए अब है दो हमजों की तखफीफ, यानी अब यहाँ पर तखफीफ जो होगी वो वाजिब होगी। अगर एक कलीमे में दो हमजा अगर जमा हो तो उनकी तखफीफ के तीन फायदे। पहला फायदा क्या है? अगर दो हमजा एक कलीमे में जमा हो, ठीक है, उनमें पहला हर्फ मुतहरिक हो, ठीक है, दूसरा साकिन हो, तो दूसरे हमजा को अव्वल हमजा की हरकत के मुआफिक हुर्फ इल्लत से बदलना वाजिब है। देखो, ये मिसाल ले लेंगे। हम लोग ईमान वाले हैं लेकिन उसमें क्या तालील हुई है हमको अब तक नहीं मालूम है ना। तो ये था आमना, ठीक है। तो पहली चीज क्या है? दो हमजा एक साथ जमा हो गए मौलाना, पहली बात पाई गई। फिर पहला हर्फ मुतहरिक है पहला हमजा मुतहरिक है। और तीसरी बात क्या पाई गई? दूसरा साकिन है, दूसरा साकिन है। तब दूसरे को जो है पहले वाली हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से बदलना है। तो हरफ इल्लत में अलिफ वाउ या, तो हम जबर किसको चाहता है? अलिफ को चाहता है, तो ये हो जाएगा आमना, ठीक है ना। तो इसको हम हमारे हिसाब से क्या लिख देते हैं? आमना, खड़ा जबर डालकर लिख देते हैं, खड़ा जबर डालकर लिख देते हैं। अब ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा हमारे इंडियंस को पढ़ने को दुश्वारी होगी ना, फिर भी बाहर वाले पढ़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आमना हो जाएगा। उसी तरह जो है उमीना है, उमीना, तो दो हमजा एक साथ जमा हो गए। पहला वाला मुतहरिक है, दूसरा वाला साकिन है। तो पेश किसको चाहता है? वाऊ को चाहता है। तो ये हो गया उमीना, ये क्या हो गया? उमीना। उसी तरह ईमानन जो है असल में अब तक किसी को नहीं मालूम होगा, मतलब आप लोगों को मालूम होगा माशाल्लाह, लेकिन आम आवाम को नहीं मालूम था कि ये था ईमानन। तो दो हमजा एक साथ जमा हो गए, पहली खाई शर्त पाई गई। पहला वाला मुतहरिक है, दूसरा भी ठीक है भाई। तीसरा दूसरा वाला जो साकिन है, तो अब हमजा किसको चाहता है? या को चाहता है। तो ये हो गया ईमानन, ये क्या हो गया? ईमानन, ये क्या हो गया? ईमानन। समझ में आ गया? हाँ जी। फायदा एक, अब देखो, अल्टरनेट केसेस, एक्सेप्शनल केसेस। कुल अकला से है ना, कुल फेल अमल। अखजा से खुद है, अमरा से मुर है, मुरनी, मुरु, हुक्म करो। कुल, खुद, मुर, अगर अकला से कुल करोगे तो अकला याकुलु होता है ना, याकुलु होता है, अकला याकुलु। तो अगर इसे आप फेल अमर बनाओगे तो ये बनेगा उ कुल। ये क्या बनेगा? उ कुल।
इनमें कायदा मज़कूरा के मुताबिक हमजा को वाव से बदल जाना चाहिए, लेकिन खिलाफ क़ियास दोनों हमजा हज़फ कर दिए गए, कुल हो गया। तो कायदे के एतबार से तो क्या होना था कि ये हमजा को वाव से बदल दें और ये हो जाए कुल, लेकिन खिलाफ क़ियास ये हमजा भी गिरा दिए, ये हमजा भी गिरा दिए, सिर्फ कुल रख दिए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और खुद में हज़फ करना वाजिब है। खुद में हज़फ करना क्या है? वाजिब है। और मुर में दो हालतें हैं। देखो अब मुर को अच्छे से समझो। मुर में क्या है? दो हालतें। पहली हालत क्या है? अगर शुरू में वाक़े हो तो हज़फ ना किया जाए। अगर हमजा शुरू में वाक़े हो तो हज़फ ना किया जाए। जैसे वअमुर अहलक बिस्सलाह, तो यहां पर हमजा शुरू में आ गया, इसलिए ये वाव तो हुर्फ़ अत्फ़ है, इसको छोड़ दो। ये हमजा क्या हो गया? शुरू में आ गया ना। सेंटेंस के शुरू में अगर आ जाए, यानी जुमले के शुरू में मुर आ जाए, तो वहां पर हमजा को हज़फ नहीं करेंगे। बाद हजरात में इस तरह तालील की है कि इनकी असल उक़उलुन उख़वुज़ुन है। हमजा मुनफरिदा का कायदा 5 जारी किया, यानी हमजा की हरकत नाकल करके माकबर को दे दी गई और हमजा को हज़फ कर दिया गया। उकुला उखुदा उमुरा हुआ। इसके बाद शुरू में हमजा की जरूरत ना रही, इसलिए हमजा को हज़फ कर दिया गया। ये थोड़ा समझ नहीं समझे तो भी चलता, ठीक है ना। फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। दो हालतें मुर में बताई गई, ठीक है। यहां तक वो दो हालतें हो गई। पहली हालत क्या थी कि अगर शुरू में वाक़े हो तो हमजा को हज़फ नहीं करेंगे, जैसे वअमुर अहलका बिस्सलाह, कि जो है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो। और अगर दरमियान में आ जाए तो मुर हो जाएगा, मीम रॉ पेश मुर। तो ये दो हालतें यहां पर हो गई। अब मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमा रहे हैं कि बाज़ हज़रात में इनमें इस तरह की तालील की है कि असल में उल था। अकला याकुल से असल में क्या हो गया? उक उल हो गया, ठीक है। उसको छोड़ दें। हमजा मुनफरिदे का कायदा यहां पर जारी करें। अभी हमजा मुनफरिदे का पीछे हमने कायदा नंबर 5 देखा ना, वो कायदा जारी करें। यानी हमजा की हरकत नकल करके माकबल को दे दी गई। हमजा की हरकत नकल करके क्या करी? माकबल को दे दी गई और हमजा को हजफ कर दिया गया। तो ये हमजा की हरकत नकल करके, अब पहले तो कोई है नहीं, इसलिए हमजा को गिरा दिया। तो ये हमजा की हरकत को क्या किए? नकल करके माकबल को दे दिए। तो ये हो गया उकुल, और ये हमजा को गिरा दिया गया, तो ये हो गया उकुल। क्या हो गया? ये उकुल हो गया। इसके बाद शुरू में हमजा की जरूरत ना रही, इसलिए हमजा को हजफ कर दिया गया। तब शुरू में हमजा के फेले अमर में हमजा वसली की शुरू में जरूरत नहीं होती ना, अगर पहला वाला हर्फ मुतहरिक हो, इसलिए हमजा को हजफ कर दिया गया। टेंशन फ्री बात वही है जो शुरू में बताई गई। ये दूसरा जो है खींचतान के जो है कायदे को समझाने की कोशिश है। फिर भी जहन में क्योंकि लोग कहते हैं, इसलिए आपके सामने बात आ गई। आपको ये रखना है कि कुल, खुद और मुर असल में इन ये कायदे के तहत नहीं, बल्कि इनको जो है समाई तौर पर हमने हमजा को इसके गिरा दिया। मुर में दो सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है? अगर शुरू कलाम में आ जाए तो हमजा को रखेंगे और दरमियान में आए तो नहीं रखेंगे। अगर शुरू में वाक़े हो तो हजफ ना किया जाए, ठीक है ना। चलिए, अगर दूसरा कायदा, अगर दोनों हमजा मुतहरिक हो। पहले कायदे में क्या था? एक मुतहरिक था, एक साकिन था, और एक उनमें से मकसूर हो, खा अव्वल मकसूर हो या दूसरा, दूसरे को या से बदलना वाजिब है। जैसे जाइन अइम्मतुन, जाइन असल में जाइयुन था, या वाक़े हुई अलिफ जायदा के बाद, इसलिए या को हमजा से बदला। चलो देख लो, जाइउन हुआ। अब कायदा मज़कूर की बिना पर सानी हमजा को या से बदल दिया गया, जाइयुन हुआ। उसके बाद या पर जम्मा दुश्वार था, इसलिए या को साकिन कर दिया गया। इज्तिमा साकिनैन और तनवीन में, इसलिए या को गिरा दिया गया। ये असल में था जाई जा ये उन, ठीक है। जा इन जो था जा ये उन था। जा इन क्या था? एक सेकेंड। जा
جی ان تھا. ٹھیک ہے. اب قاعدہ دیکھو کہاں سے. یا واقع ہوئی الف زائد کے بعد. یا واقع ہوئی الف زائد کے بعد. اجوف میں ہم نے دیکھا تھا اس کو. اس لیے یا کو حمزہ سے بدل دیے. تو الف زائد کے بعد ہوا اس لیے حمزہ کو کیا کر دیے, یا کو کیا کر دیے, حمزہ سے بدل دیے. یا کو کیا کر دیے, حمزہ سے بدل دیے. تو یہ ہو گیا جائعن. اب قاعدہ مذکورہ کی بنا پر ثانی حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا. اب قاعدہ مذکورہ کیا ہے, یہ قاعدہ کیا ہے, اگر دو حمزہ متحرک ہوں, دونوں متحرک ہیں, ٹھیک ہے, پہلی بات بائی گئی, ایک ان میں سے مقصور ہے, ایک مقصور ہے, چاہے پہلا ہو یا دوسرا ہو, تو دوسرے کو یا سے بدلنا جائز ہے, بدلنا واجب ہے. تو یہ دوسرے کو کیا کر دیے ہم, یا سے بدل دیے. یہ ہو گیا جائعن. ٹھیک ہے نا, میں یہ کھول کھول کر آپ لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں, ورنہ لکھتے الگ سے. اب کیا ہوئی, یا طرف کلمہ میں آ گئی, یعنی یا آخر میں آ گئی. تو ہم کیا کریں, اس کو میں تھوڑا کھول کر لکھ رہا ہوں جیسا ہم پڑھتے وقت لکھتے تھے. یہ کچھ اس طریقے سے ہو گئی. تو یا طرف کلمہ میں تھی اس لیے یا کو ساکن کر دیے. اب اجتماع ساکنین ہو گیا, نون ساکن اور یا ساکن ہو گیا, تو یا کو گرا دیے. تو اب جا کر یہ کیا ہو گیا, جا ان ہو گیا, جس کو ہم آفیشیلی ایسا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو بس سمجھانے کے لیے لکھا ہوں, یہ نون کو جو لایا ہوں میں سمجھانے کے لیے لکھا ہوں. تو جا ان اس طریقے سے ہو گیا. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آئیے ائمتن کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ائمتن اصل میں قاعدہ مذکورہ کی بنا پر دوسرا حمزہ یا سے بدل گیا, تو ائمتن ہوا. ائمتن میں یہ قاعدہ جوازی ہے, وجوبی نہیں ہے. تو ائمتن میں یہ قاعدہ کیا ہے, جوازی ہے, وجوبی نہیں ہے. کیونکہ ورنہ ہم تو ائمہ ہی کہتے ہیں. ہمارے پاس جو کہا جاتا ہے ائمہ اربع کہا جاتا ہے, ائمتن ائمہ اسلام کہا جاتا ہے. تو یہ ائمتن بھی چلے گا اور ائمتن بھی چلے گا, کیونکہ یہاں پر یہ جوازی ہے. اب ہے ہمارا قاعدہ نمبر 3. اگر دونوں حمزہ متحرک ہو اور ان میں سے کوئی مقصور نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے. دونوں بھی کیا ہے, متحرک ہیں. پہلے کیا تھا, ایک متحرک ایک ساکن تھا. دوسرا قاعدہ تھا دو متحرک تھے, دونوں میں سے ایک زیر والا تھا. تیسرا کیا ہے, دونوں متحرک ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی بھی زیر والا نہیں ہے. تو ایک حمزہ کو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے. جیسے یہ پورے مثالیں نا ہم کو ابھی تک نہیں پڑھے ہوں گے آپ لوگ. جیسے آپ کا ہے آدیمو, ٹھیک ہے, آدیمو, میں پھر سے لکھتا ہوں, وہاں گیپ تھوڑے زیادہ آ گیا. ٹھیک ہے, دو حمزہ ایک ساتھ آ گئے, یہ تو الف ہے, دونوں متحرک ہے, دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے زیر والا نہیں ہے, تو دوسرے کو واو سے بدلنا واجب ہے. تو یہ ہو گیا اوادیمو. یہ کیا ہو گیا, اوادیمو. اسی طرح اؤملو تھا, تو دو حمزہ ہے, دونوں بھی جو ہے زیر کوئی بھی نہیں ہے, دونوں متحرک ہے, کس کو بھی زیر نہیں ہے, تو اس کو واو سے بدلنا واجب ہے. تو یہ ہو گیا اؤملو. اکرمو, واحد متکلم مظاہرے اصل میں اکرمو تھا. اس میں قاعدہ مذکور کی بنا پر دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا چاہیے, لیکن خلاف قیاس حذف کر دیا گیا. باقی سیقوں میں اسی کی موافقت کی وجہ سے حذف ہو گیا.